वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है मयूर ने और वीडियो का टाइटल है इंडियंस फ्रॉम 1967 टॉक अबाउट द फ्यूचर। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आज़ादी का मतलब है स्वतंत्रता, अपने आप को आज़ाद रखना, किसी के अधीन नहीं रखना। हम जो काम कर सके अपनी मर्जी से कर सकते हैं। একটা স্বাধীনতা আছে আমার মনে হয়, যেটা সত্যি স্বাধীনতা, সেটা হলো মনের স্বাধীনতা। I'm an Indian and India means everything to me. I'm a part and parcel of India. India is a part of my life. I don't have any love for the country. Really? And just I don't want to show off like other people that I got a love for the country. Whom shall I tell? Suppose I got a love. Whom shall I tell that I got a love? Shall I go on the streets and tell everybody, oh, I got a love for my country? They were really so okay. One thing I would like to do very much is to go through this country, top to bottom. I take a little bit of money and a pad and paper, a tape recorder and a camera, and I'd like to go to through this country, walking at a very leisurely pace, seeing all kinds of people of different races and different cultures, and capture them in their different moods, their songs and their dances, and the cacophony of their multifarious tongues. I like to get their agony, the anguish and the anger, the fertile soil, the parched earth, everything, so that one day when I could come back, I could open the book and remind myself of what I'm part of and what is part of me. 15th August 1947. Well, it means a lot. First of all, it's my birthday, of course, and it's one of the greatest days for India. I think of India when I see the long queues, people waiting patiently for buses, for ration. I think of India when I see people hanging on the local trains. My needs, of course they're more. I have more money to buy things. I see more things in the market, so I buy them. हमें 2 चादरें चाहिए और 2-3 कमीजें हों और एक आधा कमीज या चादर आने जाने के लिए। कितने सादे लोग। I like to wear nice clothes, but you know what has happened? I don't get money to buy it. मुझे ये मालूम होता है कि हम एक जोड़ी बैलों के साथ जमीन को अच्छी तरह नहीं खोद सकते। इसको खोदने के लिए तो अच्छी मशीनें या ट्रैक्टर होने चाहिए। When I feel that foreign blades are more economical than our Indian blades, why shouldn't I go and use them? Because I save my money. Because I very strongly believe that they serve the much better purpose and are more economical. You know, terribly difficult to get admission. But I don't understand really, there being so many colleges, there are so many who just waste a year or two because they don't get a seat into a college. If you don't get admission into a college and you just ask them how much extra would you take, you know, you're sure of getting a seat the next minute. No, I've never ever bribed for a seat in a college or a school. Actually, I feel that this question of bribing is resorted to only by the below the average students. क्या हो रहा है कि आजकल टेक्निकल एजुकेशन फ्री है। हर मैट्रिक या हर सेकेंडरी स्टूडेंट बहुत आसानी से टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकता है और इसके बाद एक अच्छा मैकेनिक बन सकता है और अपनी रोजी कमा सकता है। स्कूल गए पढ़ने के लिए? पढ़ने नहीं गए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है मालूम है? पता नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? मालूम नहीं है। अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं? नहीं मालूम। उज्जैन के कलेक्टर साहब को जानते हैं। हमारे गांव में तो स्कूल है प्राइमरी और गांव के साथ मिडिल स्कूल है। Well, I would say I'm better off than my father was in almost every respect in terms of educational opportunities. At least I don't have to work in a mill in the morning to pay for my education in the evening. Well, my ambition is to reach the highest rank which my service can provide. At the moment, of course, it's confined to just being a full general. But by the time I go high up, and if there's a rank of a field marshal, I would like to be the first one. Well, my ambition is to be a great scientist. And as you know, I'm working on meteorites and these things which fall from outer space, we don't know much about them. I want to do something very original about them and maybe get my name in textbooks if possible. For some people, security is a warm blanket. For me, security is a government job. I would like to join the IAS. I would like to sit in a comfortable chair, in an air-conditioned room, sign a couple of files here and there, write my comments in the margin, drink cups of coffee, attend meeting, and just sort of be a cog in the machine. What more do you want me to do?
मैं एक सरकारी नौकरी देखूंगा, अगर सरकारी नौकरी ना भी मिली तो मैं आर्मी में चला जाऊंगा. My ambition is to command a bomber squadron in the operational areas, and later on I'd like to go on to testing aircraft. You know what I mean? I'd like to become a test pilot. वैसे जी मैं एक अच्छे किस्म का फैक्ट्री फीडर बनना चाहता हूँ. Well, my ambition in life is to glorify myself. I want to go in film line. Film line. I want to produce one picture. You know, I got a story also. In my own line. But you have enough money? I will make money. No, see, I'll try my best now. I'll save money now. From somewhere on racing. देखिए, हीरोइन बनना तो मैं अच्छा समझती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे लिए वो बात नहीं है. मैं नहीं बन सकूँ. Progress. Of course we made progress. The sort of progress you show us in your documentary films. But after all, a child would grow, even if it didn't have the sufficient nourishment. Well, I feel happy when I see the big industries of India. At the same time, I feel unhappy when I see that all these industries are being built at the cost of agriculture. I feel very happy when I see all these fertilizers being made in the factories. Well, they mean that we have progressed a great deal, that we'll have more food because there'll be more land irrigated, that we'll have more industries because there'll be more electricity. It also means there'll be more employment, more production, more happiness. When we compare ourselves to countries like Germany and Japan, we have made no progress at all. I'd been to a village in Saurashtra some 3 years back, and I saw a very happy life. I saw that there was an ST bus coming to that village, there were roads, there was a Gram Panchayat radio, there was a windmill in that village. It was all very good. Then a year later I went to an Adivasi area in Gujarat again, and I saw that the people had not even heard of a plane or a train, and I felt that this was not progress. We make rather good aircraft as well. Gnats and vampires. Well, don't ask me, you can go somewhere else. When a mother is in danger, they do abortion, and at that time they call it apadharma. But when the country population is going like hell and country is going to dogs, they don't understand that it is also a kind of apadharma to save the country. हम घर में 13 महीने हमारी मजदूरी पूर्ति नहीं है साहब. 9 भाई बहन, 1-2 भाई इतना बड़ा है, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक बहन इतनी बड़ी, एक बहन इतनी बड़ी, एक बहन गोदी में. Well, let me put it this way. I would say our achievement is that we have a hopeful tomorrow. Our failure is that our today is very precarious. But if a country can industrialize itself so well in 15 years, I'm sure that we can lick the problem of agriculture also in the next 15 years. What do you want me to do for the country? I think I do enough by being an honest citizen, by doing my job to the best of my ability, by working 8 hours a day, by not complaining much about the rations, about the unavailability of sugar. No, I don't get to see ration queue. I can't see ration queue when I'm standing in bus queue for a whole day. How can I go in ration queue? Well, I don't know. It seems to be the fashion today to denigrate the country, and when two people meet, they get into a sort of a competition about who can abuse the government better. दूसरे लड़कों की तरह कोई कुछ खाता पीता है, मैं ये कुछ नहीं खाता पीता, सिर्फ फिल्म ही देखता हूँ. Well, I debate, I take part in dramatics, I like literature. তা অনেক কিছুই করতে চাই. ফ্রেঞ্চ পড়তে চাই, জার্মান পড়তে চাই, রাশিয়ান পড়তে চাই. সে কখনো সময় পায় না, কখনো উপায় পায় না. Well, first and foremost is dancing. I like Indian dancing, and I'm learning Bharatnatyam at the moment. And then at times I like to hear ghazals. Talking about ghazals, I like Begum Akhtar. Begum Akhtar? I play tennis myself, and I think the Indian tennis players have got a lot of hope. Well, my proudest moment was when we qualified for the Davis Cup finals, and our chaps, Lal, Krishnan and Mukherjee, they did wonderfully well. Probably you must not have heard the Indian whom I really admire, but it happens to be Zubin Mehta, the Indian conductor, who is, I should say, the only Indian conductor. I admire that man Mihir Sen. Not only because he is a wonderful swimmer, besides what he has done sounds almost fantastic. Swimming the 7 Straits is not a joke, and I would like to be another Mihir Sen if I can help it. দারুণ ক্যাপ্টেন পটৌডি.
কিন্তু আসলে যখন পটৌডি একটা সেঞ্চুরি করে তখন আমার মনে হয় না যে আমি একটা কিছু করেছি। আমার মনে হয় যদি আমি একটা সেঞ্চুরি করি তাহলে তাহলে আমার সুখ হয়, আমার শান্তি হয়। My favorite director happens to be Satyajit Ray. For obvious reasons, he has the gift of capturing the things in a realistic way, and that's why he's being acclaimed all over. हिंदुस्तान का भविष्य तो वैसा आज मैं कैसे बता सकूंगी। I don't think there's any future left for us. We have got only a big past to boast of. As Kennedy put it, I think it's a question of not what the country can do for you as much as what you can do for the country. Of course, frustration is in fashion today, but I think deep within every Indian, despite all this frustration, we are underestimating him. He has a capacity to work. If all the people in this country who didn't fancy their prospects in it we are allowed to quit, I think I'll stay. Because it's something big. It's a huge experiment, and I would like to be part of it. बात करें इस वीडियो की तो फिर देख के मैं ये सोच रहा था कि इतनी देर पहले यानी कि 1967 में भी इंडिया में अगर लोगों का वो एक तरीक़ेकार देखें ना, वो काफ़ी ज़्यादा आगे था टाइम के हिसाब से। Exactly. मैं यही चीज़ सोच रही थी कि बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड हमें लोगों के नज़र आए उस टाइम के लिहाज से। सबसे पहले तो मुझे इंटरव्यू जिन लोगों ने कंडक्ट किया और जो उनका एक आइडिया था, उनके लिए सीरियसली मैं बोलना चाहूंगी, व्हाट एन आइडिया सर जी। सही बात है। इतने टाइम पहले 1967 में जो लोग 47 में 15 अगस्त 47 में पैदा हुए, यानी कि 67 में 20 इयर्स के हुए, उनसे पूछा जब वो अपने बिल्कुल हम कहेंगे कि वो जवान हो गए, उनसे उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी हॉबीज के बारे में बेसिकली देखा जाए तो उनका थॉट प्रोसेस क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश की गई है। अच्छा, वैसे मैं एक बात बीच में नोट की, जो एक थे जो लड़का था वो जो जवाब दे रहा था कि फ्रस्ट्रेशन लेवल उस टाइम पे भी काफी ज्यादा था लोगों में। एग्जैक्टली मैं ये बात सोच रही थी कि हम लोग कहते हैं अभी बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं, दुनिया बड़ी तेज भागम भाग में चल रही है और हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन है और वो किसी ना किसी तरीके से निकल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो काफी टाइम पहले जब लोगों को, मुझे लगता है कि जब लोगों में ना ऑनेस्टली मुझे लगता है कि जब आपको ज्यादा जानकारी होना शुरू होती है ना, तो कहीं ना कहीं पर चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेशन भी इसलिए होती है क्योंकि आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके बस में नहीं होती, आप उसको नहीं कर पा रहे होते, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती रहती है। प्रॉब्लम्स आप देखते हो, उनका सोल्यूशन कोई निकल नहीं रहा होता, तो मुझे लगा तब हमारी फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो काम जब रुके होते हैं ना, वो स्टक हो जाते हैं एक जगह पर, फिर हमारी जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन होती है वो बाहर निकल होती है। वो काम किसी भी वजह से रुक सकता है, आपकी अपनी पर्सनल चीज़ों की वजह से भी रुक सकता है, गवर्नमेंट हर्डल्स की वजह से भी रुक सकता है, लेकिन ये चीज़ तो मुझे कंफर्म होगी भाई फ्रस्ट्रेशन हमारे यहाँ पे ना शुरू से ही जो है चलती आ रही है। लेकिन उसके बावजूद मैं अगर बात करूँ तो मैं बीच में जितने मैंने लोगों की सोच सुनी वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगी, और ख़ास तौर पर उनका इनके जो पुराने लोग थे ना, उनका एक बोलने का तरीका, अंदाज़े गुफ्तगू उनका बहुत खूबसूरत हुआ करता था। मैं अक्सर इनसे बात करता हूँ कि मुझे जो है ना, जो पुराना यानी कि एक पुराने वक्त में पाकिस्तान की बात करें, यही भी 60s 70s तक या 80s तक बात करें, तो मुझे पाकिस्तान अगर आप पढ़ते हैं ना उसके बारे में, तो आपको बहुत ज़्यादा सेकुलर और लोगों के दिमाग बहुत ज़्यादा खुले लगते हैं। अच्छा, वैसे मैं एक बात नोट कर रही थी कि जो वीडियो में देख रही थी ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था लोग उस टाइम के लिहाज से भी अगर देखें तो अभी मैं अगर देखूं बस ये था कि ब्लैक एंड व्हाइट थी जो हम लोगों ने फुटेज देखी है। अदरवाइज इसी को कलर कर दो तो वो सब ऐसे लग रहा था आज की दुनिया के, बातें उनके करने का स्टाइल इस तरीके से था, उनका जो सोचने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। और एक और चीज जो मैंने नोट की वो ये कि तभी भी देखो हर कैटेगरी के लोग थे, ठीक है ना। एक आम इंसान जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है, उसकी सोच और उसकी ख्वाहिशात कुछ और है। एक किसान है, उसकी ख्वाहिशात कुछ और है। एक पढ़ा लिखा आदमी है, उसके सोचने का तरीका कुछ डिफरेंट है। बट उसके साथ साथ ये भी देखो कि तभी भी ये चीज होती लोगों में, मतलब सब में मैं बात नहीं करूंगी, बट ये एक सोच पाई जाती थी कि
ये मत सोचे कि कंट्री ने हमें क्या दिया, हमने कंट्री को क्या दिया, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन में मैं कहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छा आउटपुट है, क्योंकि देखा जाए तो जस्ट 20 ईयर्स आफ्टर 47 इंडियंस की सोच इतनी आगे चली गई हुई थी और इतने पढ़े लिखे लोग थे। तो ऑब्वियसली जब हम देखते हैं आज का टाइम, तो एक लंबा अरसा जरूर लगा है लोगों को समझाने में, ऊपर आने में, बट अभी हम देख रहे हैं तो प्रोग्रेस ऊपर होती जा रही है। यार नो डाउट, अगर आप आज से क्या नाम लेते हैं कोई 40-50 साल पीछे चले जाए ना, तो तब लोग जो हैं तब इस तरह नहीं थे जिस तरह आज आपको लोग देखने को मिलते हैं। उनका यानी कि पुराने वक्त में बात करें तो एजुकेशन बहुत बड़ा एक इशू था, जो कि आजकल आप देखें तो आपको जो है बहुत सारी जगहों पर एजुकेशन के जो मसले हैं वो हल होते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद जैसे बीच में एक किसान थे, उन्होंने कहा कि क्या नाम लेते हैं जो बैल हैं उससे नहीं होता, हाँ तो ट्रैक्टर होना चाहिए, फिर उसके हम मशीनें नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जो है जब मैकेनिक की तरफ गए, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा अब जो है वो चीज़ें इन हो रही हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो करवा भी रही है, तो जो नौजवान है उन्हें वो सीखना चाहिए और मैकेनिकल वर्क में भी आना चाहिए। फिर साइंटिस्ट की बात की गई, यानी कि आप देखें तकरीबन मुझे जहाँ तक नजर है ना, हर जो एक मेजर इंडस्ट्री है, बेशक वो हैवी इंडस्ट्री है, बेशक वो जो है ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, हर बंदे का हाँ हर को जानकारी थी और हर वो बंदे को दिखाया गया जो इंटरेस्ट रखता है डिफरेंट चीजों में। यही चीज तो मुझे अच्छी लगी है कि देखो इतने सालों पहले भी लोगों को इतनी ज्यादा जानकारी थी। आई एम 100% श्योर, बट आई थिंक 50+% श्योर कि यहाँ पर शायद उस टाइम पर लोगों को मे बी इतना ज्यादा प्रोग्रेस मुझे नहीं लगता मौजम लोगों ने किया। मैं अगर बात करूं जो मैंने चीजें पढ़ी है ना, पाकिस्तान में 80s तक एक काफी अच्छा प्रोग्रेस रहा है, लेकिन उसके बाद जो है डाउनफॉल आना शुरू हो गया। लेकिन एक होता है कि लोगों की मैं वही मैं बात कर रहा हूँ कि उस टाइम अगर आप लोगों के जो मैंने कुछ पुराने लोगों के इंटरव्यूज देखे हुए हैं, उनकी अगर आप सोच देखें ना, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा खुले दिमाग लगते हैं। देखो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट होने लगा भाई मौजम के साथ। जो सेलिब्रिटी लेवल के लोग हैं ना, वो डेफिनेटली वो ब्रॉड माइंडेड हो गए। मैं आम लोगों की, आम पब्लिक की बात कर रही हूँ कि क्या उनके भी इतने खुले दिमाग थे उस टाइम पर, ये बात सोचने वाले। टाइम मशीन चाहिए नहीं, टाइम मशीन नहीं। देखो ये जो लोग थे ये कोई सेलिब्रिटीज नहीं थे, ये आम लोगों में से उठाए गए लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली बोलूं तो हाँ, मैं ये जरूर अग्री करती हूँ कि तब लोगों में मुझे लगता है कि ना एक पेशेंस ज्यादा होता था, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं। बट अब मुझे अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे इंडिया जो है वो ज्यादा मॉडर्न लगा है उस टाइम के लिहाज से भी, और प्रोग्रेसिव भी ज्यादा लगा है। नो डाउट। देखें एक जो है इंडिया की बात करें वो एक अलग ट्रैक पे था, पाकिस्तान की बात करें उसका एक अलग ट्रैक रहा है। लेकिन मैं अगर लोगों की बात करूँ ना, तो जिस तरह आप अभी भी कुछ लोग आपको मिले ना, आप उनकी बातें सुने ना जो ओल्ड एज हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है कि उस जमाने में लोग फिर भी प्रोग्रेसिव थे। लेकिन अगर आज की बात करें ना, आज की जनरेशन उस तरह नहीं है जैसी आपको तब देखने को मिलती थी। ऑब्वियसली अभी की जनरेशन में तो बहुत ज्यादा एक डिफरेंस आ गया, टाइम बहुत एक डिफरेंट है। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है और चीजें ऐसे फट करके एक दूसरे के पास पहुंच जाती हैं। बट मतलब हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, इसी तरह से मेरी और मौजम की भी अपनी डिफरेंट ओपिनियन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा एक डिफरेंस रहा है पाकिस्तानी सोसाइटी में और इंडियन सोसाइटी में, अगर प्रोग्रेस को लेकर लोगों के माइंड की मैं सिर्फ बात करी। यहाँ पर मैं इकोनॉमी की बात नहीं करी, किसी इंडस्ट्री की बात नहीं करी, क्योंकि लोगों की सोच जो जब हम सुनते हैं और फिर आपको पता चलता है कि लोगों की सोच जो है वो किस हद तक जो है वो जाती है। क्योंकि जो सोच होती है ना, वो इंसान को और आपके हालात को बदलने में, लोगों को बदलने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम का भी अगर बात करें तो अभी तो बहुत सारी मिक्स्ड हम कहेंगे कि हमें लोगों का एक रवैया देखने को मिलता है। बट उस टाइम के लिहाज से जो मुझे लगता है बड़े भोले लोग थे, मतलब जो हम लोगों ने अपने अराउंड देखे हैं, अपने बड़ों को देखा है, उनकी सोच मुझे लगता है यही होती थी, सिंपल खाना पीना और मतलब कमाना और बच्चों को पालना, ये वाली मैंने एक सोच देखी है। बिल्कुल हाँ। लेकिन जहाँ पे आपने बात की ना कि लोगों की, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि आप जब जो पुराने वक्तों में इतना ज्यादा वो मीडिया तो होता नहीं था जिस तरह आपको आज देखने को मिलता है, लेकिन जब आप सेलिब्रिटीज के शो देखते हैं उसमें जो पब्लिक आती है आप उससे भी काफी सारी चीजों को जज करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि पहले वक्त में
पाकिस्तान में खास तौर पर एक खुला माहौल हुआ करता था, अब जरा जो है उस तरह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक ना थोड़ा सा देखो एक खास तबका होता था, ठीक है ना, जो जाया करता था। अभी अगेन मुझे यही लगता है जो हम ये नहीं कह सकते कि एक मिडिल क्लास फैमिली की इजी एक्सेस होती थी वहां पर। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि प्रोग्राम बहुत अच्छे हुआ करते थे और एक फैमिली एक एनवायरनमेंट हुआ करता था और लोग बुरा नहीं मानते थे। बट अगेन बहुत सारे मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो मिडिल क्लास फैमिली की मुझे नहीं लगता कि इजी एक्सेस हुआ करती थी। ऑन द अदर साइड अगर मैं इंडिया को देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को वहां पर फ्रीडम काफी ज्यादा मुझे नजर आती है। अब ये जैसे कि अगर उनकी बातों को लेकर, अगर जितनी भी यहाँ पर महिलाओं ने बातें की हैं उनको लेकर अगर मैं बात करूं या उनके पहनावे को लेकर बात करूं या उनकी मैं कहूँ कि उनकी जो सर्विसेज दे रही हैं उसको लेकर बात करूं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर इंडिया में बहुत ज्यादा जो एक वुमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत टाइम से है, अभी से नहीं। हम लोगों का तो अभी भी बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं इन चीजों में, बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, इवन कि सिर्फ मैं लड़कियों के बारे में बात नहीं करूंगी, मर्दों को भी लेकर बहुत सारी चीजें हैं जिनमें उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो आई थिंक एक बैलेंस जरूर मेंटेन करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि मौसम आज के टाइम के लिहाज से उन लोगों के टाइम की जब हम बात देख रहे हैं आज, उनके बोलने में एक ठहराव था, उनके बात करने में एक गुफ्तगू बहुत अच्छा था, ठीक है ना, वो आपको एक चीज समझ में दी। अभी मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर बात मैं करते अभी हैं। भी पुराने लोगों की यानी कि जब वीडियोस देखता हूँ ना, बेशक वो सेलिब्रिटीज हैं या फिर यानी कि एक होते हैं ना वो फोक सिंगर्स जो कि इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुए थे, जब मैं उनके इंटरव्यूज पुराने देखता हूँ ना, तो उनके बात करने के तरीके में एक बहुत ज्यादा हम्बलनेस थी। वो बेशक किसी भी तरीके से बात कर रहे हो ना, अंदाजे गुफ्तगू में उनकी एक रिस्पेक्ट होती थी हर बंदे के लिए, बेशक क्लैशेस हो जो मर्जी हो, लेकिन रिस्पेक्ट होता था एक। कि अगर आपकी ओपिनियन मैच नहीं भी करती और आपको कोई बात नहीं पसंद आ रही, तो बात करने का तरीका ऐसा होगा कि उसमें भी एक अदब नजर आता था। लेकिन आजकल के मुझे लगता है हम लोग इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं ना कि हम लोग को ना कोई अभी थोड़ी सी मुंह से बात निकाला फौरन नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा जाता है। हालांकि प्रॉब्लम उस टाइम पर ज्यादा थी, आज के टाइम से अगर देखा जाए तो दुनिया ने इतनी तरक्की उस तरीके से नहीं की थी। खैर, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ना हम लोगों को सीरियसली सीखना चाहिए अपने बड़ों से कुछ, एटलीस्ट ये आदाब और रख रखाव तो कम से कम जरूर सीखने चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में काफी ज्यादा बहुत कमी है। असल में अगर बात की जाए ना, आज के वक्त में हमारी वो जो एक एजुकेशन सिस्टम है वो उस तरह का नहीं है। पुराने के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए ना, नो डाउट वो था तो पुराना, लेकिन उसमें एक अदब, एक तहजीब, एक रिस्पेक्ट, ये चीजें सिखाई जाती थी। आज के वाले में जो है ना एजुकेशन सिस्टम नो डाउट जदीद तो हो गया है, लेकिन वो जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट था ना वो उसमें से निकल चुका हुआ है। वेल गाइस, मैं कहूंगी कि अपने आप में ये वीडियो एक कीमती वो बोलते हैं नायाब है, ये बहुत ही मतलब हम कहेंगे वैल्यूएबल है, क्योंकि ये मतलब आई थिंक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी पुरानी फुटेजेस देखूंगी। मौजम, तुमने कभी एक्सपेक्ट किया था? मैंने बहुत सारी पुरानी फुटेजेस देखी हुई हैं। अच्छा, कितने साल हो गए हमें होंगे? मतलब 67 से ना, तो 87, 10, 97, 20 50 इयर्स तकरीबन हो गए ना, मतलब तक नहीं 50 प्लस हो गए। हाँ, 50 प्लस हो गए, मतलब इतने पुराने लोगों को हम देख रहे हैं, तो वैसे मतलब 70 इयर्स के होंगे, वो 70 प्लस होंगे, है ना, अभी के टाइम में अगर वो हुए तो। हाँ, वेल गाइस, ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच मयूर, इतनी खूबसूरत वीडियो हमारे साथ शेयर करने के लिए, और इसी के साथ हमें ज्यादा वीडियो सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।